Hello friends, I welcome you all to my channel once again, Manoj Goel, Insight of Facility Management. It's been a long time, I know, but nevertheless. So today I am going to describe, my experience towards the office repair and maintenance. It's a very common term across all offices, across all industries, irrespective of the nature of work or the type of the entity. So the term repair and maintenance, which you may call R&M, is very common across all type of offices. This expense exists in any and every type of organization, and this is an integral part of your office operational expenditure, which is called OPEX. Some may absorb this cost under AMC on a per square feet basis, rate contract basis, or need based cost, but it exists everywhere. Every small entity has a minor repair and maintenance expense, or a big entity has a bigger expense. Every organization adopts and follows certain ideas and processes to deal with this cost in a better way. They ought to, as this is treated to be an ongoing expense of any and every organization. But do you know, there are certain ways to rationalize this cost. I would not say cut the cost. It's not cost cutting, but it is cost rationalization. So how do you rationalize your office repair and maintenance cost? Now, in order to ensure BAU of your office infrastructure, one should have a robust repair and maintenance process, but at the same time, one should also look at its various cost aspects. Actually, it's a combination of both, that is repair and maintenance cost. So there is a vast difference between repair and maintenance cost also. These are two different elements actually, which is called repair of the office infrastructure and office equipment maintenance services, which you also call AMC services, right? First of all, I am going to give you very useful tips to rationalize your office R&M cost. Number one, you should always try and keep all the warranty cards safe with you, as they can be used to claim for things under warranty. For example, you have opened a new office. आपने ऑफिस खोला, ऑफिस खोलने के बाद आपने उसमें एसी लगवाया. अब क्या होता है, जनरली एसी के पहले साल में आपकी फर्स्ट ईयर वारंटी के अंदर होता है, तो आपकी जो एसी की सर्विसेज होती है वो फर्स्ट ईयर बाय डिफ़ॉल्ट 4 सर्विसेज फ्री होती हैं, राइट? तो आपको उस सर्विस को अवेल करने के लिए उसका वारंटी कार्ड आपको संभाल के रखना पड़ेगा, so that you can show to the AMC vendor and get the service done free of cost. Okay. Second is always use branded material to avoid recurring repair cost. वो कहते हैं ना हिंदी में कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, वो वाली बात है. तो आप जब ब्रांडेड मेटेरियल यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी रिपेयर कॉस्ट कम होगी. थर्ड इज पुट एम्फेसिस ऑन post work area measurement to calculate the exact execution of the repair work. This comes, when you get some work done. जैसे आपने अपने ऑफिस में रीपेंट कराया, पेंट कराया, राइट? सो आपको पता है कि प्रोजेक्ट फाइल में मेरा पेंटेबल एरिया है, मान लो 2000 स्क्वायर फीट एरिया का 5500 स्क्वायर फीट एरिया. बट जब आप कंप्लीट ऑफिस रीपेंट कराते हो तो कुछ ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं या आप छोड़ देते हो उनको, राइट? तो उनका एरिया कम हो जाएगा. तो जब आप काम होने के बाद एक्चुअल एरिया मेजर कराओगे तो आपका वो एक्चुअल एरिया आ जाएगा पोस्ट कंप्लीशन ऑफ वर्क. सो यू शुड ऑलवेज पुट फोकस ऑन दैट, पुट एम्फेसिस ऑन दैट. फोर्थ इज डिसाइड वाइजली ऑन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसेस. आपको जो आपके जितने भी प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है, मतलब आप एक ब्रांच लेवल में बैठे हैं और आपका कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आपके कॉर्पोरेट ऑफिस ड्रिवन होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. और जो ऑफिस आपके स्टेट लेवल पे ड्रिवन होते हैं उनको हम
डिसेंट्रलाइज प्रोसेस. अल्टीमेट कमांड उनकी सेंट्रल ऑफिस से होती है, बट they are being governed by the central office, but they are being executed by the state office, right? Next is robust internal audit processes to avoid wastage and pilferage. Now आपने प्रोसेस बनाया, अब प्रोसेस बना के आपने उसको ऑडिट नहीं किया अगर, तो क्या होगा अल्टीमेटली, वो उसमें वेस्टेज आएगी या फिर वो पिल्फरेज होगी. मान लो एक आपका प्रोसेस डिवाइस हुआ सेंट्रल ऑफिस से स्टेशनरी मैनेजमेंट का, तो आपने स्टेशनरी एज पर दी ब्रांच एरिया और एज पर द रिक्वायरमेंट आपने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट की ब्रांचेस में. वो रिक्वेशन भरती हैं, आप स्टेशनरी सप्लाई करते हो, उनको भेजते हो. सो अगर आप इसको ऑडिट नहीं करोगे, मतलब एक ब्रांच बार बार पेन क्यों मंगा रही है, एक ब्रांच बार बार इतना ज़्यादा A4 पेपर कंज्यूम क्यों कर रही है, अगर आप इसको ऑडिट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ पेपर एंड देयर माइट बी अ पिल्फरेज ऑल्सो, कि कोई चोरी कर रहा है उसको, A4 पेपर रिम्स को, राइट. So there has to be a robust internal audit management process for all your processes that you innovate or that you implement. Next is evaluate your service providers time to time on their performance efficiency. Even if आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, right? So it doesn't mean that 1 साल तक अब वही काम करेगा. He may be wrong at some point of time. He may be do wrong things at some places. So until and unless you keep evaluating your service providers on their performance efficiency, you may not be able to get the right thing what you expect out of the service provider. इसका एग्जांपल है बहुत बढ़िया, सीडिंग एक्सरसाइज जब हम करते हैं कुरियर को लेके, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको इसकी डिटेल के बारे में. देन यू हैव performance efficiency matrix for all the vendors, when you start evaluating them. Next important part comes into picture when you create internal awareness among the staff on how to use the facility or services. Guys, ये बहुत important चीज़ है. क्या होता है कि आपने कुछ भी चीज़ implement करी, but there are many staff who do not know how to use that particular facility or services. मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा. So इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, so that your staff is well versed with the things you have implemented in the offices, that how to use that service or a item, right? First point towards it is that you should always publish various advisories on consumption of tissue papers. अब आपने देखा होगा when you go to a washroom, आप देखते हो आपके साथ में कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है या फिर वॉश बेसिन में अपना हाथ धो रहा है, कुछ कर रहा है, या फेस उसने वॉश किया, तो वो क्या करता है, वो एक के बाद कई बार तो मैंने देखा है बहुत से लोग 7, 8, 10 टिश्यू निकाल लेते हैं एक साथ, M4 टिश्यूज, एंड देन दे वाइप ऑफ देयर फेस, राइट. अब मैं अगर 2 टिश्यू निकालता हूँ M4 के, तो मेरा फेस उससे भी वाइप हो जाता है, बट दे वर टेंडेंसी टू यूज़, एक भी ड्रॉप पानी की नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा उनको साइकोलॉजिकल होता है कि ज़्यादा टिश्यू लेंगे तो दे विल गेट अ मोर क्वेश्चन. सो दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, राइट. सो हाउ टू यूज दी टिश्यू पेपर्स. देन डिस्पोजेबल ग्लास. You go to the cafeteria, take a coffee, you always use a second glass to hold the glass properly, because एक ग्लास में कई बार आपको गर्म लगती है कॉफ़ी, तो आप ऊपर तक मत भरो, अपनी कॉफ़ी मशीन की एडजस्टमेंट कराओ, सो दैट वो 3/4 फिल हो कप में, सो दैट आप ऊपर से कप को होल्ड कर पाओ. गॉट इट. देन A4 कंजम्पशन पेपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर envelopes, you should always educate your staff to use recycled envelopes for at least internal mail correspondence, right? Electricity consumption, this is very important. Use of drinking water bottles, rationalized consumption of biodegradable and photodegradable bags as costly, and many more. जब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करोगे, अपनी स्टाफ को एडवाइजरी इशू करोगे कि इनको आपको यूज़ कैसे करना है, सो दिस विल नॉट ओनली सेव योर टाइम, इट विल ऑल्सो सेव योर एफर्ट एंड मनी फॉर द कंपनी, राइट. सेकेंड पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं.
लॉस ऑफ ड्रॉर कीज. आपको पता है, आपको ड्रॉर एलोकेट हुआ, आपको चाबी मिल गई, अब आप एक दिन घर से चाबी लाना भूल गए, अब आपके ड्रॉर में डॉक्यूमेंट रखे इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू डू, यू कॉल योर एडमिन पर्सन और एफएम पर्सन, प्लीज़ भैया आई नीड अ डुप्लीकेट की. अब सपोज किया उसके पास उस समय डुप्लीकेट की नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली यू आस्क देम टू ब्रेक ओपन द लॉक, which will cost a lot, right? So this is bad. So you should also emphasize on its issuance. Put penalty on loss of company ID cards, consumption of visiting cards. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसने रिक्वेशन डाली मुझे 200 विजिटिंग कार्ड चाहिए और उसके एक हफ्ते बाद डाली मुझे 200 विजिटिंग कार्ड चाहिए. तो यू शुड बी एबल टू आस्क दैट पर्सन, what did you do with those 200 visiting cards which were issued to you last week? Unless it is a salesperson, then also, I mean, actually it should get materialized into his numbers, sales numbers, you know. Visiting card है तो इसका मतलब ये नहीं है आप जाके किसी को 10, 12, 15, 20 बांटाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. They should understand its cost, its usage, and they should use it wisely. Right? Tell your staff to refrain themselves touching walls as it leaves marks on walls. क्या होगा, आप दीवार पकड़ के किसी से बात करते हो, जो कॉर्नर्स होते हैं डोर्स के, चौखट के, उनको पकड़ के आप जनरली झांकते हो, पीपिंग करते हो, तो होता क्या है, यू नो, पेंट के निशान, आपके हाथ के निशान रह जाते हैं वहाँ पे. देन यू डिमांड फॉर अ रीपेंटिंग ऑफ द ब्रांच, एंड यू नो यू कांट जस्ट पेंट दैट एरिया. In that case you have to paint the entire wall. अब वो वॉल 100 स्क्वायर फीट की भी हो सकती है, वो वॉल 10 स्क्वायर फीट की भी हो सकती है, and it ultimately boils down to a cost management, right? Publish a clean desk policy, self-sustained approach. This is very important. Self-sustained approach. You know, you should tell people that, you know, your office is your home. आप अपने घर में भी दीवार पकड़ के बात करते हो किसी से? नहीं करते हो ना. तो जब आप घर में नहीं करते हो तो आप ऑफिस में क्यों करते हो? तो द पीपल शुड सेल्फ सस्टेन, यू नो, देमसेल्फ इन द फैसिलिटी सो दैट योर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट शुड बी लेस, नॉट हाई, राइट? नेक्स्ट इज यू शुड ऑल्सो पुट एम्फेसिस ऑन misuse of the sources or the services that are being provided by you to your staff. Okay? Another important aspect of this thing is that, you know, when you sign a rate contract with a service partner, to ensure that you standardize the process across, uniformed price metrics of material across cities, saving of managerial time, heavy discounts on bulk requirement. In that way you can align with your purchase department and tell them all these things, because ultimately you are the end user. Okay, so you should align yourself with your purchase department to set things right. Okay, next important part is that, you know, always award AMCs of your office equipments to your OEM, which is original equipment manufacturer, right? This ensures proper PPM check. PPM you may call is preventive planned maintenance, right? Easy availability of some brand or make spare parts. Imagine you have installed all Carrier ACs in your office and you award an AMC to a local service partner. One day your compressor comes off. What will happen, you know, if you have XYZ brand compressor installed in the AC and you install some local brand compressor in the AC just to save cost management, or it may be played by the service partner, then what will happen? It will not last. It may not work till next 5 years term, right? So that's why it is always being said that हमेशा आप AMC उसी से कराओ जो आपका OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है. ठीक है. तीसरा बेनिफिट क्या है?
it reduces breakdown of equipments. Original equipment, original spare parts will reduce your breakdown costs. It will save your time, your money and effort. It also increases the life cycle replacement of equipments. फॉर एग्जाम्पल अगेन एसीज की बात मैं कर रहा हूँ. मान लो आपने एक लाइफ साइकिल सेट की है 5 साल की, ठीक है. आपका जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो आपकी एएमसी मैनेज कर रहा है, वो टाइमली सर्विस कर रहा है, ओरिजिनल पार्ट्स आपके रिप्लेस कर रहा है एसी में. तो जो लाइफ आपकी एसी की 5 साल की है वो लाइफ बढ़ के 7 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है. बिकॉज आपका एसी एफिशिएंसी, उसकी कूलिंग एफिशिएंसी ठीक है, राइट. यहीं उसी दूसरी जगह अगर आप उस एसी में लोकल पार्ट्स लगवा देंगे तो उसकी जो लाइफ साइकिल रिप्लेसमेंट है एसी की, हो सकता है वो 5 साल से घटकर 4 साल रह जाए, या आपको 5 साल में ही एसी बदलवाना पड़े. तो आपकी केपेक्स बढ़ेगी इससे, ठीक है ना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राई टू अवॉइड ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एएमसी टू योर फिट आउट सर्विस प्रोवाइडर ओनली. ये बहुत मुश्किल है, बट वन शुड ऑलवेज ट्राई. मैं एक फिट आउट वेंडर हूँ आपकी कंपनी में, मैंने आपकी कंपनी की ब्रांच बनाई है, तो अगर मैं उसकी ब्रांच की एएमसी ले लेता हूँ रिपेयर की, तो माशाल्लाह मैं जानता हूँ कि मैंने कौन सी वायर कहाँ से रूट की है, कौन सा एसी का ड्रेन पाइप कहाँ से रूट किया है, ठीक है. अगर आपके पास उन सब के डायग्राम नहीं है तो आपको रिपेयर कराने में बड़ी मुश्किल होती है. सैनिटरी की लाइंस मेरे को पता है कहाँ से मैंने रूट की है, यू नो. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. It really helps you in post office repair and maintenance activities as they understand the in and out of the work. It also avoids unnecessary repairs because they are well versed with the routing of the electrical wires, conduits, AC drain pipes, water lines. That makes your repair work fast and cheap. ये मैंने आपको बताया पहले, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, always engage an established repair and maintenance agency rather than engaging in ad hoc contractors. अगर आपका फिट आउट वेंडर अग्री नहीं होता है तो आपको एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एजेंसी को एंगेज करना चाहिए, ना कि ad hoc कॉन्ट्रैक्टर्स को. ये आपको हेल्प करता है. इट मे लीड्स टू एन एक्सपेंसिव प्रेपोजिशन. अगर आप ऐसा करेंगे तो ad hoc कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो it will go to a non-standardization of the work across different offices. For example, आपने लैमिनेट चेंज कराया अपने ऑफिस का, वॉल पैनलिंग लगवाई, उसमें लैमिनेट लगवाया. अब क्या होगा, किसी ने 1 mm का लैमिनेट लगाया, किसी ने 0.8 का लगाया. अब सेम कोड में 0.8 और 1 mm में कई बार सेम कलर कोड नहीं आता है. उसके आजू बाजू का कोड लेके उसने लगा दिया, आपको तो पता नहीं है, आपने कहा ठीक है ओके है, बट अल्टीमेटली इट इज़ रॉन्ग अप्रोच. तो इससे क्या होगा, आपके ऑफिस में नॉन स्टैंडर्डाइजेशन होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल ऑल्सो इंश्योर द कंप्लायंसेस एंड लेबर इश्यूज, राइट. एंड योर प्रीमाइस इज बीइंग केप्ट सेफ्टी. आपके प्रीमाइस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के इशू बढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर आप एड हॉक कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं तो. एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ. एक ऑफिस में एक बार क्या हुआ, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है. तो उन्होंने एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उनका जो पैनल्ड एजेंसी थी R&M की, वो टाइम से नहीं आ पा रही थी. लोकल कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कुछ गलती करी वहाँ पे और मीटर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ तो उसका चेहरा थोड़ा जल गया, हाथ जल गए, और देन उसको उस ब्रांच ऑफिस वालों ने गाड़ी में ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसकी ड्रेसिंग हुई, बैंडेज हुई, सब कुछ हुई, वापस आ गया घर पे, उसको घर ड्रॉप कर दिया कुछ पैसे देके, राइट. उन्होंने सोचा कि मामला यहीं पे ख़त्म हो गया. यू विल नॉट बिलीव वो चीज़, इट टुक अ डिफरेंट शेप ऑल टुगेदर. मतलब उस इलेक्ट्रिशियन के relatives, friends, family, they started calling the branch and saying that he has become disabled. अब वो काम नहीं कर पा रहा है, वो काम कैसे करेगा. He was the only earning source of our family.
how will he earn and all those blah blah blah. And मतलब it's a detailed and long story. अल्टीमेटली उस ब्रांच को, उसकी फैमिली को कुछ पैसा देना पड़ा ताकि वो केस रफा दफा हो। उसे लिखवाया, उसके भाई बंधुओं को ऑफिस में बुलाया, उसको पैसा दिया, उसे पेपर पे लिखवाया, तब जाके उन्होंने अपनी जान छुड़ाई, राइट? बिकॉज यू नेवर नो, वेदर whom you are calling is a trained or a certified electrician or not. और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिशियन के केस में ज़्यादा आती है, ठीक है? तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ अ रूटीन एंड ऑनगोइंग एक्टिविटी अक्रॉस योर ऑफिस। यहाँ पे आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्शन लें वो एक कॉन्क्रीट हो और एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन अप्रोच फॉलो करें, ठीक है गाइज? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट बैक इन द कमेंट सेक्शन आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, वॉचिंग मी। टेक केयर, बाय बाय।